Okay, so let's get started. So today we will discuss a few questions of vowel ability. Okay, so firstly we will discuss some important courses for kids, and here are the courses. First one is C for beginners. Okay, this course started. This course started on 2nd of July. Okay, and you will get lifetime access for this course. Just register and purchase this course if you want to improve your knowledge for C. So second course is Java for beginners. So this course will deal with Java language. Okay, so you can purchase this course, and this course is also started on 2nd of July, and with lifetime access you will get this course. So you can see details, and you will get a link in the description box for these courses. Third course is web lab projects. This started at on 31st May with the lifetime access, and this is course for beginners who want to make projects, okay, in web lab. So they can purchase it, and this course, all the courses are discussed in basic to high level. Okay, so you can go through these courses if you want to improve your C language, Java language, and web lab projects. Next one is computational thinking with Scratch. So you can also purchase this course. It was started on 30th May, and this course have a lifetime access. You can go through the course, do register yourself for the course, and purchase it. Next course is learn to make apps in App Lab. So you can learn how to make apps in App Lab through this course, and basic to high level questions are discussed in this course. Okay, and the course price is rupees 299, and this was started on 15th May, and course has lifetime access. You can register it for this course. Next course is create game in Game Labs. So you can create games, okay, in Game Labs, and this course started on 1st of May with lifetime access. You can go through this course if you are interested to create games. Okay. Next one is create real world apps in App Labs. So you can also create. We have two courses related to App Lab. First one is learn to make apps in App Lab, and second one is create real world apps in App Lab. Okay, so this is the second course, and it started on 16th April, and this course also has lifetime access. You can go through the course. You will get links in the description box for these courses, and purchase it and take benefit from this course. Next course is machine learning with the help of Scratch. So you can purchase this course, and this course started on 26th of April with the lifetime access. Okay, so register yourself for this course and purchase it and take benefit of these courses. Next one is web design. Web designing for beginner. This one is the important one. You can design your website through this course or using HTML. Okay, and the price for this course is 399 rupees. And in this course, you will get concepts from basic to high level. Okay, you will have certain number of questions to solve them, and you this course started on 15th of April, and it also has lifetime access. So you can see this, that every course has lifetime access. This is the important thing. Okay, purchase once and study through these courses lifetime. Okay, so purchase it as soon as possible. Next course is Python programming. This is also for school students, so you can learn Python program in detail. Okay, and the price for the course is 299 rupees. It was started on 9 Feb, and this course also has lifetime access. So if you want to learn programming, then this course is the best one for you. So you can purchase it. Link will be in the description box.
Next course is first step to data structure and algorithms. Okay, so this was started on 15th of June. So do purchase it and take benefit from this course. And the last course is entrepreneurship, how to build massive valuable companies. This one is the best one. Okay, it was also started on 15th June. Okay, and you can register yourself for this course and you can take benefit for this from this course. Okay, so these are the courses for kids. You can purchase these courses and you can take benefit from these courses. आज का सेशन में हम कुछ क्वेश्चंस हम स्टार्ट करेंगे. Okay, so the first question is, in the following question, out of the four alternatives, choose the word which best expresses the meaning of the given word and click the button corresponding to it. Okay, receptacle. Receptacle आपका एक वर्ड है. ओके, इसका 4 अल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं और आपको वो वर्ड चूज करना है जो बेस्ट एक्सप्रेस कर रहा होगा इस वर्ड का मीनिंग. मतलब आपको साइन ऑफ बताना है. रेसेप्टेकल का आपको साइन ऑफ बताना है. 4 ऑप्शन हैं, 60 सेकेंड्स हैं. कमेंट करिए फटाफट से. सो रेसेप्टेकल मतलब होता है आपका, रेसेप्टेकल मतलब होता है हॉलो ऑब्जेक्ट. क्या होता है इसका मतलब? अ हॉलो ऑब्जेक्ट. ओके, इसका मीनिंग होता है हॉलो ऑब्जेक्ट यूज टू कंटेन समथिंग, which is used to contain something. Okay, Deep Das with C. Okay, C is the correct answer. Okay, बहुत बढ़िया. Container will be the correct answer. ठीक है, so container is the word. ठीक है, जो आपका सिमिलर इन मीनिंग है. ओके, टू दिस वर्ड receptacle. ओके, कंपार्टमेंट का कोई मतलब नहीं है. होल में कुछ कंटेन नहीं कर सकते. ओके, फनल में भी कोई चीज़ कंटेन नहीं कर सकते हैं. ओके, क्योंकि फनल के थ्रू भी आपका फ्लो होता है, होल के थ्रू भी कुछ भी चीज़ आपकी फ्लो कर सकती है, लिक्विड वगैरह. ओके, सो दीज थिंग्स कैन नॉट कंटेन समथिंग. ओके, बट जो रिसेप्टेकल होता है इसका मतलब है आपका हॉलो ऑब्जेक्ट. ठीक है, जिसको हम यूज़ करते हैं कोई चीज़ कंटेन करने के लिए. मनीदीप, वेलकम टू द सेशन. क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर करेंगे सभी लोग. इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव, चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड एंड क्लिक द बटन करस्पॉन्डिंग टू इट. तो एंटो बताना है आपको. वैनिटी इज द वर्ड. 4 ऑप्शंस आर गिवन एंड यू हैव 60 सेकेंड्स टू कमेंट द आंसर. मणिदीप, दीपदास, आंसर करिए सभी लोग. सारे दीप हैं क्या यहाँ पे? कमेंट करिए भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर फटाफट से. Please answer it. Question number 2. In the following question, out of 4 alternatives, choose the word which is opposite in meaning to the given word and click the button corresponding. Mushkan Sarma, courage. Okay, Deep Das with D. Okay, so vanity means accept pride in or admiration of one's own appearance or achievements. ठीक है, मैं लिख देता हूँ इसको. vanity मीन क्या होता है आपका? एक्सेप्ट प्राइड मतलब आपको एक तरीके से घमंड होना. ठीक है, किस चीज का? एक्सेप्ट प्राइड ऑफ वंस ओन अपीयरेंस, अपने जो अपीयर होता है. ठीक है, अपने अपीयरेंस का या फिर अपनी अचीवमेंट्स का.
ओके, दैट इज वैनिटी। ओके, और इसका जो अपोजिट हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका ह्यूमिलिटी। ओके, जो बिल्कुल आपका इसका अपोजिट मीनिंग देगा। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो वैनिटी मीन्स एक्सेस प्राइड, और वी कैन से एक्सेस प्राइड इन, ओके, और वी कैन से एक्सेस एडमिरेशन ऑफ वंस ओन अपीयरेंस और अचीवमेंट्स। सो इसका जो अपोजिट हो जाएगा दैट इज ह्यूमिलिटी। तरुण इज करेक्ट, दीपदास इज ऑल्सो करेक्ट, मुस्कान इज रॉन्ग। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राई करिएगा सभी लोग। Question number third is here. Four words are given out of which only one word is spelled correctly. Choose the correctly spelled word and click the button corresponding to it. So ऐसा word होगा जो आपका एक correct spelling वाला होगा, वही आपको क्या करना, आंसर करना है। Four options are there. Please comment करिए सभी लोग आंसर। कौन सा आपका करेक्ट स्पेलिंग है? एक्विजिशन, एक्विजिशन का मीनिंग आपको, सॉरी, करेक्ट स्पेलिंग आपको बताना है। एक्विजिशन मतलब होता है द एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग और बाइंग समथिंग, द एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग और बाइंग समथिंग। ओके, दैट इज एक्विजिशन। So correct spelling is ACQUISITION। ओके, सो कौन सा ऑप्शन है? सो आई थिंक ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, बिल्कुल करेक्ट दीपदास, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। Okay, so now we will move to the next question. Question number 4 to 6. In the following questions, one part of the sentence may have an error. Find out which part of the sentence has an error and click the button corresponding to it. If the sentence is free from error, then click no error option. And the sentence is, if you permit me to speak the truth, I shall state without hesitation that you have done a mistake. प्लीज कमेंट करें, मुस्कान, दीपदास, तरुण एंड मनी, प्लीज कमेंट करें क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे। प्लीज क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर कमेंट करें। किस पार्ट में आपका एरर है? अगर कोई एरर नहीं है तो डी ऑप्शन मार्क करें। कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 4 to 6 का आंसर। Okay, so in this sentence we have given a sentence, okay, and the error is in C part, okay, and the error is of collocation error। कौन सी एरर है? कोलोकेशन। कोलोकेशन एरर क्या होता है? कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके साथ फिक्स आपका सब्जेक्ट और फिक्स आपका वर्ब यूज होता है। ठीक है। सो मिस्टेक ऐसा आपका नाउन है, मिस्टेक ऐसा नाउन है जिसके साथ जो आपका वर्ब है वो आपका मेक यूज होता है। क्या यूज होता है? मेक यूज होता है। और यहाँ पे डू का थर्ड फॉर्म यूज हो रखा है, तो मेक का भी थर्ड फॉर्म यूज होगा, इट शुड बी मेड। ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके साथ एक फिक्स वर्ब यूज होती है, और वही आपका यहाँ पे मिस्टेक है। मिस्टेक अगर आपका नाउन लिखा है तो इसके साथ मेक वर्ब यूज होगी, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। और यहाँ पे डू का थर्ड फॉर्म यूज हो रखा है, डन। तो वैसे भी अगर मेक यूज होगा तो बाई हैव, हैज, हैड है, तो इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। तो मेक की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है मेड। तो क्या हो जाएगा आपका? मेड अ मिस्टेक। सो द करेक्ट स्टेटमेंट विल बी, इफ यू परमिट मी टू स्पीक द ट्रुथ, I shall state without hesitation that you have made a mistake। क्लियर है?
सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। आई सक्सीडेड परsuading हिम टू कम विद मी ओनली आफ्टर आवर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट। क्वेश्चन ऑफ फिफ्थ का आंसर करेंगे सभी लोग। प्लीज फाइंड द एरर, एंड अगर कोई एरर नहीं है देन मार्क द ऑप्शन नंबर डी। यू हैव 60 सेकेंड्स, दीपदास, मुस्कान, तरुण एंड बाकी जो भी प्रेजेंट है फटाफट से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 5। आई सक्सीडेड परsuading हिम to come with me only after hours of argument. कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ओके, सो आई आपका सब्जेक्ट है। ओके, सक्सीडेड जो है वो आपका वर्ब है, और ये आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है। इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट। ओके, परsuading आपका क्या, परsuade आपका वर्ब होता है, ये इसका आईएनजी फॉर्म है। इट मीन्स ये क्या है आपका जेरेंड है। ठीक है, जेरेंड है तो इट मीन्स ये क्या आपका नाउन है, और नाउन है इट मीन्स ये क्या, अगर वर्ब के बाद नाउन लिखा है तो इट मीन्स ये नाउन क्या है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। बट ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जो आपका सक्सीड वर्ब है ये आपका क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। अगर ये इंट्रांजिटिव वर्ब है तो ये जो परsuading जेरेंड है ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। अगर ये परsuading इसका ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता वर्ब का, तो ये परsuading किसका ऑब्जेक्ट होगा, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, इन प्रपोजिशन ऐड करते हैं। तो इट शुड बी आपका आई सक्सीडेड इन परsuading हिम टू कम विद मी only after hours of argument. Okay, so error was in part A. It should be succeeded in. Muskan was correct. बहुत बढ़िया मुस्कान। And the next question is, vermin does much harm to crops, and no error. Please mark your answers for question number 6. 4 options are there. Okay, अगर कोई error नहीं है then you have to mark option number D. 60 seconds है, फटाफट से कमेंट करके आंसर बताएं। 5 यहाँ प्रेजेंट है, 5 के 5 आंसर करो। तरुण, दीपदास, मुस्कान। तरुण का आंसर, तरुण बहुत लेट आंसर्स आ रहे हैं आपके। फटाफट आंसर करो भाई, हर क्वेश्चन का आंसर करो। ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, तभी सेशन में मजा आता है। 60 सेकेंड्स है। वर्मिन, अच्छा ये कौन से का आंसर है तरुण, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है क्या? ओके, सो जो आपका वर्मिन होता है ना, वर्मिन मतलब आपका वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स में भी वो एनिमल जो क्या करते हैं, आपके फार्म को क्या करते हैं, हानि पहुंचाते हैं, जैसे फॉक्स हो गए। ओके, सो ये जो आपके एनिमल जो आपके फार्म को हानि पहुंचाते हैं उन्हें हम वर्मिन कहते हैं। और जो वर्मिन है ना वो आपका नाउन है, और वर्मिन जो नाउन है ना ये आपका प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन है क्योंकि ये क्या आपका कलेक्टिव नाउन है। अगर ये नाउन प्लूरल है और कलेक्टिव है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका वर्ब कौन सी लगेगी, प्लूरल वर्ब लगेगी ना। ओके, अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लगेगी इसके साथ। तो जो आपका डज है वो तो वर्ब सिंगुलर होती है, तो इसके साथ क्या होना चाहिए था, आपका डू होना चाहिए था। तो इट शुड बी द वर्मिन डू मच हार्म टू क्रॉप्स एंड नो एरर। सो आपका बी पार्ट में एरर होगा, इट शुड बी डू। तो वर्मिल हो गया, कैटल हो गया, पीजेंट्री हो गया, जेंट्री हो गया, कैवलरी हो गया। ये नाउन इनमें एस और यस नहीं लगा रहता है, स्टिल ये नाउन आपके प्लूरल होते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना। 7 to 9 क्वेश्चन का आपका डायरेक्शन देखेंगे। द सेंटेंसेस गिवन विद ब्लैंक्स आर टू बी फिल्ड विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड्स। 4 alternatives are suggested for each question. For each question, choose the correct alternative and click the button corresponding to it. And the question is light is dash then sound.
प्लीज फटाफट से कमेंट करें विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7. यू हैव 60 सेकेंड्स टू आंसर द क्वेश्चन. 60 सेकेंड है, घड़ी टिक टिक कर रही है, आपको आंसर करना है फटाफट से. दीप दास विद ए. ओके, बढ़िया भाई बढ़िया. मोर फास्टर तरुण. तरुण के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है. तरुण मेहनत करो, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है. मुस्कान के आंसर्स अच्छे आ रहे हैं, बहुत बढ़िया. मुस्कान प्लीज़ आंसर करिए. मुस्कान के काफ़ी आंसर्स करेक्ट हैं, बहुत बढ़िया. तरुण फोकस ऑन इंग्लिश ग्रामर, ठीक है. लाइट इज देन साउंड हमने लिखा है, तो जो आपका देन होता है इसको पढ़ लेंगे आप लोग तो बहुत कुछ समझ जाएंगे. जो देन होता है ये आपका कंजंक्शन होता है. ये क्या होता है? आपका कंजंक्शन होता है, और ये कंजंक्शन तब यूज करते हैं जब कंपैरिजन किया जा रहा हो, ठीक है. इसका मतलब है ये कंपैरिजन का कंजंक्शन है. अब कंपैरिजन तभी होता है जब आपका कंपैरेटिव डिग्री यूज हो, ठीक है. कंपैरेटिव डिग्री मतलब ईआर फॉर्म, या फिर ऐसे एडजेक्टिव जिनका ईआर फॉर्म नहीं होता उनके यहाँ मोर लगा देते हैं, ठीक है. तो जो फास्टर है ये आपका कंपैरेटिव डिग्री है, ये आ सकता है. फास्टर ईआर लगा हुआ तो खुद में कंपैरेटिव डिग्री है, इसके साथ मोर लगाना गलत होता है क्योंकि खुद में ही कंपैरेटिव है, तो मोर लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है. लाइट आपका साउंड देती है, ऐसा थोड़ी होता है कि लाइट से हमें साउंड मिल रही है, तो साउंडर जो है वो गलत कंपैरेटिव हो जाएगा. लाइटर मतलब लाइट हम तब यूज करते हैं ये वाला जब वेट की बात हो, तो यहाँ पे वेट का कंपैरिजन नहीं हो रहा, ना कि ध्वनि, ना ही हम ध्वनि का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो साउंडर भी नहीं आएगा, लाइटर भी नहीं आएगा. यहाँ पे स्पीड का कंपैरिजन हो सकता है कि लाइट की स्पीड का कंपैरिजन कर रहे हैं हम साउंड की स्पीड से, ओके. तो हमें यहाँ पे फास्टर यूज करना है. क्या यूज करना है भाई? फास्टर यूज करना है. सो ए विल बी द करेक्ट आंसर. एक एक चीज हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है. मुस्कान का इस बार भी करेक्ट है, बहुत बढ़िया. क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करें सभी. द मैन डैश फॉर द पर्पज नेवर डिड व्हाट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम. चलिए कमेंट करें सभी लोग क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर. क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सभी लोग कमेंट करें. The man dash for the purpose never did what was expected of him. 60 सेकेंड है गाइस सभी के पास, ओके. सो एक पर्पस के लिए किसी आदमी को क्या किया होगा? सप्लाई किया होगा? नहीं. फेवर किया होगा? नहीं. एम्प्लॉय करा जा सकता है, साइटेड भी नहीं होगा, ठीक है. एम्प्लॉय कर सकते हैं हम किसी व्यक्ति को, किसी पर्पस के लिए हम एम्प्लॉय कर सकते हैं, ठीक है, ओके. अब नेवर डिड व्हाट वाज, तो जो उससे एक्सपेक्ट किया गया था कि हाँ भैया ये इस काम को अच्छे से कर लेगा, उसने वो नहीं करा, तो इस व्यक्ति को ऑब्वियस सी बात है एम्प्लॉय किया होगा किसी वर्क के लिए, तो इट शुड बी एम्प्लॉयड, ठीक है. द मैन एम्प्लॉयड फॉर द पर्पज नेवर डिड व्हाट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम, ओके. सो इट शुड बी क्या हो जाएगा आपका? सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है. सी आपका क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. साइट मतलब होता है आपका टू मेंशन समथिंग, ठीक है. और वी कैन से टू यूज समबडीज एग्जैक्ट वर्ड्स, ठीक है. किसी चीज को सपोर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? किसी के वर्ड्स यूज करते हैं या फिर कोई चीज मेंशन करते हैं, तो दैट इज साइट. क्लियर है तरुण? ठीक है. चलो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करेंगे. देयर वॉज अ सीरियस डैश बिटवीन टू ब्रदर्स. प्लीज कमेंट करें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा. ए अल्टरकेशन, अल्ट्रेशन, एब्रेशन और एग्निशन. क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करें.
एब्रेशन मतलब हो जाता है आपका अनसाउंडनेस, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, और वी कैन से डिसऑर्डर ऑफ माइंड, ठीक है। अल्टरेशन आपका चॉइस को रेफर करता है, ठीक है। चलो भाई आंसर करो फटाफट से, सब मीनिंग मैं ही बता दूंगा तो आप तो फिल ही कर दोगे इसको। Okay, so altercation will be the correct answer. There was a serious altercation. Altercation मतलब होता है a noisy argument. Altercation मतलब क्या होता है? A noisy argument. Or we can say disagreement. Okay, so क्या हो जाएगा? There was a serious uh, argument between the two brothers. So option number A will be the correct answer for this question. Okay, D नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 to 12 का डायरेक्शन पढ़े फटाफट से। इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस 4 alternatives are given for the idiom or phrase. Choose the alternative which best expresses the meaning of the idiom or phrase and click the button corresponding to it. जो भी लोग यहाँ प्रेजेंट है फटाफट से क्या करें, लाइक कर दे सेशन को प्लीज। आज सेशन को लाइक नहीं करा भाई किसी ने, जल्दी से जाके सेशन को लाइक करे सबसे पहले, उसके बाद दोबारा यहाँ पे आके क्वेश्चन करे। क्वेश्चन नंबर आपका 10, फटाफट से लाइक करो भाई जितने भी लोग यहाँ प्रेजेंट है। टू गिव वन सेल्फ एयर्स, ठीक है, एक ईडियम दिया हुआ है, इस ईडियम का आपको मीनिंग बताना है, फटाफट से आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 10 का डी दीपदास करें। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो फटाफट से जाके क्या करें, लाइक करें, सेशन को शेयर करें, जितने भी ग्रुप्स हैं सब ग्रुप्स में शेयर करके आओ फटाफट से पहले। टू गिव वन सेल्फ एयर्स मतलब हो जाएगा आपका एज्यूम अ हॉटी मैनर, ठीक है, और वी कैन से प्रिटेंड टू बी बेटर देन वन इज, ठीक है। ओके, टू गिव वन सेल्फ एयर्स मतलब एज्यूम a haughty manner, pretend to be better than one is, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, दैट इज बिहेविंग एरोगेंटली। क्लियर है? सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। डी होगा तरुण, डी। चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। एक और आपका ईडीएम है एट अ स्टोन्स थ्रो, बहुत सिंपल ईडीएम है, इसका सभी को आंसर पता होगा। कमेंट करें, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, फटाफट से कमेंट करो। एट अ स्टोन्स थ्रो प्लीज कमेंट करें, और जो भी सेशन में प्रेजेंट है वो सभी लोग सेशन को लाइक करते हुए चलें। इस तरीके से लेके 11th का ए 11th का सी, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, ठीक है, कि किस चीज का आंसर कर रहे हैं आप, कौन से क्वेश्चन का, तरुण एंड मुस्कान। सो प्लीज ऐसे लेके 11 का कर रहे हैं तो 11 का सी, 10 का कर रहे हैं तो 10 का डी, इस तरीके से। एट अ स्टोन्स थ्रू, ठीक है, तो एट अ स्टोन्स थ्रू का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, इसका मतलब होता है एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब पत्थर की दूरी पे, ऐसा एज्यूम करके इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। सो एट अ स्टोन्स थ्रू मतलब छोटी दूरी पे कोई चीज है, ओके, एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एंड द लास्ट ईडियम आपका बोन ऑफ कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन। चलो 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। आर डिलीशियस नॉन वेजिटेरियन आइटम, ओके, चलो, एन आइटम विच मेड देम कंटेंट, ओके, कॉज फॉर क्वेरल, ओके, अ लिंक बिटवीन देम। बहुत सिंपल है ये, बोन ऑफ कंटेंशन किसी चीज की हड्डी। चलो भाई बताओ भाई किस चीज की हड्डी।
जो भी यहाँ प्रेजेंट है लाइक करे सेशन को। ओके 12th का सी। ओके दीप इज विथ सी। बाकी लोग देखो बोन ऑफ कंटेंशन मतलब होता है वी कैन से अ सब्जेक्ट और इश्यू over which there is continuing disagreement. ओके सो एक ऐसा सब्जेक्ट या फिर एक ऐसा मैटर या फिर एक ऐसा इशू जिसके ऊपर लगातार डिसएग्रीमेंट चल रही है, बहसबाजी चल रही है. सो सी विल बी द करेक्ट आंसर. इट शुड बी कॉज फॉर क्वेरल. ओके शिव कुमार विद डी. नहीं शिव कुमार, इट शुड बी सी, कॉज फॉर क्वेरल. 12 का सी होगा. मुस्कान इज करेक्ट. बहुत बढ़िया, मुस्कान के बहुत सारे आंसर्स करेक्ट हैं. तो जो भी लोग यहाँ प्रेजेंट है, सेशन अच्छा लग रहा है तो डू लाइक द सेशन. ओके एज सुन एज पॉसिबल, फटाफट से पहले लाइक करके आओ. क्वेश्चन नंबर 13 to 15 का आंसर करेंगे. आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स और सेंटेंसेस एंड क्लिक द बटन करस्पॉन्डिंग टू इट. अ पर्सन हु हैज लॉस्ट द प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ. क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कमेंट करेंगे. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है. एक आपका पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है और आपको बताना है कि इसके लिए कौन सा वर्ड आपका करेक्ट रहेगा. अ पर्सन हु हैज लॉस्ट द प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ. प्लीज कमेंट करें एंड आंसर बताएं क्वेश्चन नंबर 13 का. जो अभी ज्वाइन हुए हैं वो फटाफट से सेशन को शेयर करें, लाइक जरूर करें सेशन को. जितना जल्दी हो सके सेशन लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो भाई. 13 अ पर्सन हु हैज लॉस्ट द प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ. दीप दास विद ए 60 सेकेंड से फटाफट कमेंट करें. मुस्कान कमेंट करो. शिवा कुमार डू कमेंट. तरुण कमेंट करें. So the option number A will be the correct answer. A person, we can say a person deprived of the benefit and protection of the law, and that is outlaw. That is outlaw. So A will be the correct answer. B नहीं होगा. A will be the correct answer. Okay. And the next question is falsification of documents etc. कौन सा आपका करेक्ट वर्ड होगा इस सेंटेंस के लिए. ओके इस फ्रेज के लिए. फॉल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स. प्लीज आंसर करिए सभी लोग. आउटकास्ट नहीं होगा. इट शुड बी आउटलॉ. मुस्कान. क्वेश्चन नंबर 14. एक ही वर्ड है, बाकी तो कॉमन से हैं. कॉमन वर्ड है ये तो वही डेली लाइफ में यूज करे होंगे आपने. जेरोक्स करवाना, जो हम जाते हैं क्या फोटोकॉपी मशीन से, ठीक है. लैमिनेट करवाना, पैक करवाना, ठीक है. एक पेपर होता है उसमें हम क्या करते हैं, जैसे आधार कार्ड है, आधार कार्ड में पहले क्या करते थे हम एक ट्रांसपेरेंट पेपर यूज करते थे, दैट इज लैमिनेटिंग. कॉपी करना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. कॉपी करते हैं आप एग्जाम्स में, ठीक है. यहाँ भी कॉपी कर रहे होंगे. एक ने बी लिखा 14 का तो मैं भी बी लिखूंगा 14 का. ओके सो फॉर्जरी विल बी द करेक्ट आंसर. फॉर्जरी का मतलब हो जाता है आपका द क्राइम ऑफ falsely making or altering a writing. ठीक है. और राइटिंग भी कैसा है, जो आपका लीगल राइट्स हो या फिर
ऑब्लिगेशंस हो, ठीक है, अनदर पर्सन के, ठीक है, तो उनका राइटिंग का कॉपी करना, दैट इज फॉल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, जाली जाली कागजात बनाना, दैट इज फॉल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और वो है आपका फोर्जरी। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। मुस्कान, ये वाला रॉन्ग है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, टू मेक अटोनमेंट ऑफ सॉरी अटोनमेंट फॉर वन सिंस, ठीक है। चलो कमेंट करें इस सेंटेंस के लिए, इस फ्रेज के लिए हम कौन सा वर्ड चूज करेंगे। लास्ट स्टेटमेंट है ये, और लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। कमेंट करें फटाफट से, 60 सेकेंड से, टू मेक अटोनमेंट फॉर वंस सिंस। फटाफट से लाइक कर दें जो भी यहाँ प्रेजेंट है, जितने भी लोग सेशन में प्रेजेंट हैं पहले तो लाइक करो सेशन को, सेशन को लाइक करो फटाफट से। सेशन को लाइक करो भाई, क्या हो जाएगा, टू मेक अटोनमेंट फॉर वन सिंस, ठीक है। सो 15th का ए है अकॉर्डिंग टू दीप, एंड तरुण के अकॉर्डिंग 15 का सी है, ओके। सो जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए, और वह आपका एक्सपिएट। एक्सपिएट मतलब होता है आपका मेक अमेंड्स, मेक अमेंड्स और रिपेरेशन फॉर गिल्ट और रॉन्ग डूइंग, ओके। क्लियर है सर, मुझे 15 क्वेश्चन शो नहीं हो रहा, ऐसा कैसे हो सकता है मुस्कान। रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करो, बैक जाओ, रिफ्रेश करो, ओके, देन इट विल अपीयर टू योर स्क्रीन, ओके। सो गाइस आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। कल प्लीज नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, बेल आइकन है उस पर क्लिक कर दो भाई, घंटी पे क्लिक कर दो ताकि आपको सेशन का नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। बेल आइकन होगा, ठीक है, उस पर क्लिक कर दो, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो कल मिलते हैं, आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा, आप लोग लास्ट तक जुड़े रहे, इट मीन्स यू लाइक द सेशन, ओके। And do share the session with your friends, do subscribe the channel, and do press the bell icon, okay, for getting notified for the next session. And the timing of the session will be 8 p.m. to 9 p.m. daily. Okay, so guys, thank you, keep watching, happy learning, and all the best for your examinations. Bye bye, take care.